Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and yes, very warm welcome. And यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वालिटी लेवल एजुकेशन फॉर 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 school level examinations, NMTC and so on. Right, so you can see it very well in front of your screen. Moving on, आज का जो lecture है children, this is the last lecture for today of miscellaneous chapter is miscellaneous क्योंकि हमने इसमें calendar किया, clock किया, then we studied dice, right? So आज हम लोग children cubes पढ़ेंगे and figure partition, right? So this is the last lecture for this topic, I mean this chapter as well as of sub junior, right? So moving on, this is a super awesome team children. हम सबके lectures available हैं, playlist में different playlist बनी हुई हैं, you can go through it for different classes and कुछ भी लेक्चर अगर छूट जाता है तो वो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं. ये मैं हूँ चिल्ड्रन, दिस इज मी, आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स, सो यू कैन गो थ्रू द चैप्टर्स. दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है एंड लेट्स से दिस चैप्टर इज़ फॉर like 7th standard, right? 7th and 8th standard, तो आप उस अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं. So why I am asking you to join us, so that none of your information would be missed. आपको सारा information से पता लगता रहेगा. Moving on, this is our website children, talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको जो different packages हैं वो दिख जाएंगे. So 6300 is the highest package and it is the complete package. Again इसमें आप AV Live code use करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा and then you will be getting the 6300 package. उसमें you'll be getting the study material, test series and other inclusions are mentioned. Other than that children, जो second package है that is for all test series, that is the test series package and again 6, 7, 8 तीनों में यही pricing होगा 2450 after applying my code, and this will be the test for whole year. So like there will be cumulative test, part test here, and again children, in these packages bi-weekly quizzes as well as the videos that are there, जो video lectures हैं, these are for free. You can access them anytime, anywhere. There's no issue with that, right? So like I have told you everything about it. Still कुछ भी queries रहती है children, तो 9549041111 is the number, वो आपके सामने लिखा हुआ है. You can call on that number anytime for any kind of queries regarding talking textbook, आपके lectures से regarding या और कोई भी doubts हैं आपको, so you can always call on that number. Moving on children, let's start with our ritual. हम लोग अपना ritual start करेंगे promise लेने का, and then we will start with the question for today. So we have already studied all these. Clock पढ़ लिया था हमने, calendar पढ़ लिया था. So days of week and all these things, calendar we have already studied. और days निकालना, right? Dice, last lecture हमने dice पढ़ा था children, dice से related questions हमने किए थे. अब आज हम लोग cubes पढ़ेंगे, cube test मतलब basically, and figure partition. We'll be studying that. So what does my question says here? अब cube क्या होता है ये तो आपने देखा ही है भाई. What is a cube? You all know very well, but I'll draw it. सबने Rubik's cube देखा ही होगा, I hope. See here, this is a cube जो यहाँ पे बना हुआ है. This is a cube children, like this is known as Rubik's cube, and it is also a cube. यहाँ पे बहुत सारे partitions हैं इस cube के, you can see it here. जो बड़ा cube है, जो Rubik cube है, उसके भी बहुत सारे छोटे छोटे cubes बने हुए हैं, which are again colored, जो color कर रखे हैं. एक side red है, yellow है, blue है, right? So this is what something we are going to study. So my question says, let's study it with the question. So the question says, a cube whose two adjacent faces are colored. ठीक है, ऐसा क्यूब जिसके दो adjacent faces, adjacent मतलब आगे जो आसपास वाले हैं,
पास पास वाले जो फेसेस हैं आर कलर्ड इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल स्मॉल क्यूब्स. कितने में कट हुआ है? 64 आइडेंटिकल स्मॉल क्यूब्स में इट हैज बीन कट. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉल क्यूब्स आर नॉट कलर्ड एट ऑल. अब इसमें से कितने क्यूब्स हैं विच आर नॉट कलर्ड एट ऑल? सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ इट. लेट्स ड्रॉ इट. मान लो मैंने इस तरह से इसे बनाया. I made it like this. So obviously you are going to use a scale, children. आप obviously scale से बनाओगे तो थोड़ा proper बनेगा ये. This is what I intend, right? This is like this and like this. All right, थोड़ा सा ये और बेहतर बन जाएगा. All right, like this. ठीक है. अब वो बोल रहा है किसके अंदर 64 उसमें बांटा है इसने इसको. 64 कट्स हुए हैं इसके अंदर, राइट? सो अब ये बात समझना चिल्ड्रन कि अगर मैं लेट्स से लेट्स डू इट लाइक दिस, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. ऐसे मैंने किया. इसमें तो 3 ही हो पाएंगे, मुझे थोड़ा और छोटा बनाना पड़ेगा इसको. थोड़ा सा. व्हाट इज दिस हैपनिंग? All right, so let me make it a bit छोटा छोटा ताकि 1 2 and 3. ठीक है. और इसी तरह से यहाँ पे मैंने 1 2 and 3 इस तरह से मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी. ठीक है. कितने हो गए चिल्ड्रन? 16 हो गए. 16 हो गए. अब बेसिकली 16 क्यूब्स मुझे बना, मतलब 64 क्यूब्स मुझे बनाने हैं, है ना? तो बस अपन इसको इसी तरह से आगे वो कर देते हैं. Please imagine that it is a cube, children, and not a cuboid. It is a cube that I'm making. I'll mention it. It's a cube. ठीक है, ताकि आपको लगे कि ये क्यूब ही बनाया मैंने. And like this, right? यहाँ पर भी वही इतने ही मैं इस तरह से बना दूंगी इसको. 1 2 3. थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. And like this. And like this. ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है? A cube whose two adjacent faces are colored is cut into 64 identical cubes. अब समझ लो कि भाई ये colored है, ठीक है? ये दोनों अलग अलग कलर से colored है. Let's say this is colored like this, मतलब ये पूरा इस तरह से colored है. और let's assume कि ये वाला इस तरह से colored है. ठीक है? ऐसा अपन मान लेते हैं. ठीक. अब इसके अंदर अपने को क्या देखना है चिल्ड्रन? अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ. सी, like the figure that is shown, let the upper face and the right hand side face of the cube be colored, है ना? जो upper face है इसको भी कलर कर देते हैं अपन. कौन सा कलर करें? ग्रीन ही कर देते हैं, है ना? So let's say all this is colored, है ना? तो अपन मान लेते हैं कि जो upper face है ना, वो and the right hand side face of the cube be colored. Then we can see that the rows of smaller cubes, right, by cutting the large cubes into 64 parts are indicated by dots. मतलब dots से मैंने बनाया नहीं, dots मैं बना देती हूँ इसके अंदर. देखो जैसे this, this and this. अब ये क्या है? ये अलग अलग
क्यूब्स हैं चिल्ड्रन, दीज आर ऑल अलग अलग क्यूब्स, ठीक है, एंड हैव नन ऑफ देयर साइड्स कलर्ड। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉल क्यूब्स आर नॉट कलर्ड एट ऑल। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे चिल्ड्रन जो बिल्कुल भी कलर्ड नहीं होंगे, राइट मतलब एक साइड तो इनकी कलर्ड है ना, एक साइड इनकी कलर्ड है, पर ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी साइड्स कलर्ड नहीं होंगी, है ना। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, देखो मेरे पास सिर्फ जो कलर्ड है वो कौन से हैं चिल्ड्रन, देखो 1, दिस इज इसके अंदर वाली जो रो है, समझ पा रहे हो, इसके अंदर। अब जैसे ये तो कलर्ड है, जो अपने फ्रंट फेस पे दिख रहा है वो कलर्ड है चिल्ड्रन, और जो यहाँ पर है ये कलर्ड है और ये कलर्ड है, उसके अलावा कलर्ड नहीं है ना। तो अब इसके अंदर वाली रो समझो, दैट इज 1 2 3 4, है ना, 4 रोज हैं। समझना अब इस बात को कि ये वाला साइड कलर्ड है, वो इस साइड वाला साइड कलर्ड नहीं है, पीछे वाला साइड भी कलर्ड नहीं है और नीचे वाला साइड भी कलर्ड नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो, सिर्फ 3 साइड्स हैं जो कलर्ड है, 2 एडजेसेंट फेसेस आर कलर्ड। तो मतलब अगर मैं मानूं इसको, इसको छोड़ देते हैं हम, है ना, इस पूरे को छोड़ देते हैं, मान लो ये भी कलर कर दिया हमने, ये भी कलर कर दिया और ये कलर कर दिया, है ना, मतलब ये और ये कलर कर दिए, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देते क्योंकि वो 2 क्यूब्स ही बोल रहा है, सिर्फ 2 साइड्स ही बोल रहा है, तो इसको भी अपन कलर नहीं करते, लेट्स लीव दिस एज वेल। इस तरह से लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। और ये 1 2 3 4 और ये कलर्ड हो गया, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है, अ क्यूब हुज 2 एडजेसेंट फेसेस आर कलर्ड। अब ये बड़ा सा क्यूब है, इसके सिर्फ 2 एडजेसेंट फेस, हमने इसको हटा दिया चिल्ड्रन, फॉर आर ईज अपन ने इसको हटा दिया और इसको कलर कर रखा है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि 2 साइड हैं जो कलर्ड हैं, बाकी और कोई साइड्स कलर्ड नहीं है। और ये कितने हैं, 64 ऐसे क्यूब्स हैं छोटे छोटे जो कट हैं, ठीक। तो अब समझो कि ये वाली पूरी रो, ये वाली पूरी रो, ये रो, ये यहाँ पे ये और ये अपन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके एटलीस्ट 1 साइड तो है ही सही जो कलर्ड है ना भाई, इसके तो 2 साइड हैं, ऐसे इन सब के एक एक साइड कलर्ड है, इन सब के एक एक साइड कलर्ड है, पर वो बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉल क्यूब्स आर नॉट कलर्ड एट ऑल, मतलब जिनमें एक साइड भी कलर्ड नहीं है, एक साइड भी कलर्ड नहीं है, वो कौन कौन से होंगे, जो ये वाला क्यूब दिख रहा है और इसकी पूरी रो अंदर वाली, ये वाला क्यूब दिख रहा है इसकी पूरी अंदर रो, ये वाला क्यूब दिख रहा है इसकी पूरी अंदर रो, अंदर वाली रो, है ना। अब इस अंदर रो में कितने क्यूब्स हैं, सी 1 2 3 4, मतलब अंदर भी उतने ही होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, कितनी रोज होंगी चिल्ड्रन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रोज हैं, राइट, 9 rows हैं, and each row has 4 cubes। भाई इस रो में देखो 1 2 3 4 4 क्यूब्स हैं, 9 rows and each row has 4 cubes, राइट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ चिल्ड्रन कि नंबर ऑफ क्यूब्स नॉट कलर्ड एट ऑल, नंबर ऑफ क्यूब्स नॉट कलर्ड एट ऑल में कितने होंगे, 9 4 सा 36, भाई एक रो के अंदर 4 हैं तो 9 के अंदर कितने होंगे, 36, ठीक है। तो कितने ऐसे क्यूब्स हो गए चिल्ड्रन, 6 हो गए, 36 हो गए जिसमें एक भी कलर्ड नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अ वुडन क्यूब इज पेंटेड ब्लू, ठीक है, अ वुडन क्यूब इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल द 4 एडजॉइनिंग साइड्स, मतलब एक क्यूब हमने लिया, वुडन क्यूब लिया, एंड इट इज पेंटेड ब्लू ऑन ऑल द 4 एडजॉइनिंग साइड्स, ठीक है। एडजॉइनिंग साइड्स मतलब ये वाला, पीछे वाला और इधर साइड वाला जो दिख नहीं रहा है
है ना। तो ये चारों साइड्स पे तो उसने ब्लू कलर कर रखा है एंड ग्रीन ऑन टू ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स कौन सी है, टॉप वाली और बॉटम वाली, वहां पे ग्रीन कर रखा है, ठीक है। नाउ इट इज देन कट एट इक्वल डिस्टेंसेस एट राइट एंगल्स, 4 टाइम वर्टिकली टॉप टू बॉटम एंड 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो अब अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अपन ने इसको ड्रॉ कर दिया जैसा ये बना हुआ है along the sides as shown in the figure। फिगर में शो कर रखा है किस तरह से कट हुआ है, where the dotted line represents the cuts made, है ना। ये डॉटेड लाइंस मैंने रेड और येलो से ड्रॉ कर रखी है जहां पे कट बने हुए हैं जैसा कि उसने बोला, है ना। अब अपने को क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फिगर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, अपने को इस फिगर पे बेस्ड उनके आंसर्स देने हैं, क्लियर। Now the question says, question number 1 says, okay. So the question number 1 says, how many cubes will have one face painted only in blue? How many cubes will have, how many cubes will have, how many cubes will have one face painted, will have one face painted, will have one face painted only in blue, only in blue, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो, आया समझ में। तो पूछता है हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव वन फेस पेंटेड ओनली इन ब्लू, ठीक है। तो मुझे ऐसे चाहिए, लाइक सी, अब ऐसे कितने होंगे जिनके वन फेस पेंटेड ब्लू होंगे। तो मिडिल लेयर जो है ना, मिडिल लेयर जो होगी चिल्ड्रन, उसमें उसमें होंगे ये सारे, मिडिल लेयर में होगा चिल्ड्रन ये सारा। तो वन, कितने हुए, देयर आर 4 cubes in the middle layer which have one face painted only in blue, ठीक है। मिडिल होंगे यानी कि 1 2, ये हुआ चिल्ड्रन, ये 1 ये वाला हुआ, इसके तो 2 हो गए। सो 1 2 3 उसके पीछे वाला और 4। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव वन फेस पेंटेड ओनली इन ब्लू, मतलब कि अगर मैं इसको किस उससे मार्क करूं, देखो इससे मार्क करती हूँ, ये वाला चिल्ड्रन, ये वाला, ये वाला, फिर दूसरी साइड में भी इसी पॉइंट पर, इस साइड पर, इस साइड पर जो हिडन साइड है वहां पर भी ये बीच वाला, सिर्फ ये ही ऐसा क्यूब है, ये ही ऐसा क्यूब है जिसका ओनली वन फेस पेंटेड ब्लू है। जैसे इसको देख लो, इन सब के, इसका 3 फेस है पेंटेड, इसके 2 फेस है, इसके भी 3 होंगे क्योंकि 1 2 और फिर नीचे वाला। तो इस तरह से यहाँ पे भी 2 फेस पेंटेड है, तो सिर्फ 1 तो सिर्फ बीच वाले का ही होगा चिल्ड्रन। तो ऐसे कितने हो गए, आंसर इज गोइंग टू बी 4। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव वन फेस पेंटेड, ओनली 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव वन फेस पेंटेड ओनली इन ग्रीन, हाउ many cubes will have, how many cubes will have, how many cubes will have one face painted, will have one face painted only in green, only in green, बताओ। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव वन फेस पेंटेड ओनली इन ग्रीन, तो अब ओनली इन ग्रीन में कौन कौन से होंगे,
सबसे पहली बात तो ये कि ग्रीन खाली ऊपर है और नीचे की साइड है, तो यहाँ पे कितने होंगे चिल्ड्रन? 2। इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? 2 ही होंगे ऐसे। देखो, एक तो हुआ ये वाला, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव वन फेस पेंटेड ओनली इन ग्रीन, तो ये तो सिर्फ यही हुआ, एक ये वाला और उसी की तरह एक नीचे वाला बॉटम में, तो देयर विल बी ओनली 2। आंसर कितना होगा चिल्ड्रन? 2। ये वाला हुआ और उसके नीचे वाला हुआ। आई होप यू आर एबल टू सी इट चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड इन ऑल, कितने क्यूब्स फॉर्म हुए हैं? हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म्ड इन ऑल, हाउ मेनी cubes are formed in all, कितने क्यूब्स टोटल फॉर्म हुए हैं? So this we can see here, see आसानी से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3, राइट, 1 2 3 and 1 2 3, so there are in total 9 cubes हैं, 9 cubes in each of the 3 layers, right? एक रो में कितने हैं चिल्ड्रन? एक रो में कितने हैं? मतलब ऐसे समझो इसको कि अगर मैं सिर्फ इस ब्लॉक की बात करूं, सिर्फ इस ब्लॉक की बात करूं, तो यहाँ पे कितने क्यूब्स हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? तो मतलब इस रो में या इस कॉलम में, मतलब इस ब्लॉक में, ऐसा मान लो कितने हैं टोटल क्यूब्स? 9 हैं। फिर इसमें कितने हैं? 9 हैं। और इसमें कितने हैं? 9 हैं, राइट? तो ऐसे ब्लॉक्स कितने हैं टोटल? 3 हैं, तो 9 into 3। सी in one block there are 9 cubes and 3 such blocks are there, therefore 9 into 3 that is 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 4 इसी पे ही बेस्ड है, मैं वापस इसको पीछे कर लूंगी। क्वेश्चन 4, what does it says? What does question 4 says? How many cubes will have at least 3 sides painted? How many cubes will have at least 3 sides painted, at least 3 sides painted? So let's see to it। at least 3 sides painted है, कौन कौन सी है? देखो, 3 sides painted, 3 side painted तो कॉर्नर वाली होगी, 3 side painted तो कॉर्नर वाली होगी, which is this one 2 3 4 और 5 6 7 और पीछे वाली जो हिडन है 8। तो टोटल कितनी हो गई चिल्ड्रन? टोटल कितनी साइड्स हो गई? 8। आंसर इज 8, राइट? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव नो फेस पेंटेड एट ऑल? हाउ मेनी cubes will have how many cubes will have no face painted, no face painted at all?
एक भी नहीं होगा जिसके अंदर। तो अब बताओ चिल्ड्रन, यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा कौन सा क्यूब होगा जिसका एक भी फेस पेंटेड नहीं है। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब इन सब में तो यहाँ पर है, इधर भी है, सारे में इधर भी है। सिर्फ ये एक होगा चिल्ड्रन, ये एक क्यूब होगा, मतलब बेसिकली ये नहीं, इस रो में सेकंड जो एकदम मिडिल मोस्ट होगा ना, इस रो के अंदर जो एकदम मिडिल मोस्ट होगा ना, वो क्यूब इज टोटली नॉट पेंटेड, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आंसर आएगा ओनली वन, ओनली वन। आंसर क्या आएगा चिल्ड्रन? वन ऐसा होगा जो बिल्कुल भी पेंटेड नहीं होगा। क्लियर है चिल्ड्रन? अब अपन थोड़े से फिगर पार्टीशन के क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चंस ऑफ फिगर पार्टीशन। ठीक है, कॉपी कर लो जब तक इसको चिल्ड्रन, प्लीज कॉपी इट डाउन, इसको कॉपी कर लो। करें चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। इसको कॉपी कर लिया, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So this question says find the minimum number of straight lines for the diagram। मतलब ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निकालनी है एंड ऑप्शंस आर गिवन टू मी। सो लेट्स कैलकुलेट नाउ। कैलकुलेट करते हैं अपन की कितनी, मतलब गिनना है, ऑब्वियसली काउंट करना है कि कितनी इसमें होगी। सो चलो गिनते हैं, मिनिमम काउंट करनी है। सो 1 2 3 4 5 6, then it is 7 8 9 10, it is 11 12 13 14 15 16 and 17। टोटल मिनिमम नंबर पूछ रहा है चिल्ड्रन को, सो मिनिमम नंबर इज B17। B17 क्लियर है चिल्ड्रन? काउंट कर लिया अपन ने, सामने सामने ही काउंट कर लिया, इसलिए मैंने रेड पेन से किया ताकि, मतलब डिफरेंट कलर पेन से किया ताकि हमें दिख जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स। काउंट करो। हाँ भैया। सो चिल्ड्रन, ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स, मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी मुझे काउंट करने हैं और नंबर ऑफ स्क्वायर्स भी मुझे काउंट करना है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। काउंट करते हैं अपन इसको। चलो नाम दे दें, नेमिंग कर दें चिल्ड्रन, इसकी नेमिंग कर देते हैं तो अपने लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा। सो दिस इज A B C D, देन इट इज E F G H, देन इसको अपन नाम दे देते हैं, लेट्स से I, लेट्स नेम इट एज J, देन K बोल दिया इसको अपन ने K, दिस इज L एंड ओके, यहाँ पे एक लाइन और मिसिंग है, लेट मी ड्रॉ दैट एज वेल, विच इज दिस, है ना। तो अब इसको नेमिंग कर देते हैं अपन O, इसको नेमिंग कर दिया अपन ने O।
ठीक, चलो अब बोलते हैं अपन इसके। अब ट्रायंगल्स, सबसे पहले जो सिंपलेस्ट ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सी ए ई आई। सबसे पहले अपन अगर काउंट करें ट्रायंगल्स तो मेरे हिसाब से 1 2 देन 3 4 5 6 7 8। 8 तो ये हो गए, 9 10 11 12। 12 तो ये ट्रायंगल्स हो गए, बट अभी इसमें और भी होंगे। 12 12। अब इसमें और फॉर्म करेंगे अपन। एक तो होगा ये बड़ा वाला 13। 12 तो अपन ने ऐसे काउंट कर लिया है ना, जो सिंपल सिंपल दिख रहे हैं। 12 8 तो अंदर थे, एंड 9 10 11 12। 12 देन उसके बाद बहुत सारे और देखेंगे हमें। 13 14 15 एंड 12 के बाद 13 14 15 16 जो बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं चिल्ड्रन, ये देख रहे हो। डी ओ सी हो गया, सी ओ बी हो गया, बी ओ ए ओ 4 ए ओ डी, राइट। सो +4 और हो गए। नेक्स्ट फिर हम काउंट करते हैं। ये हमने बहुत ही छोटे छोटे और बहुत बड़े बड़े जो ट्राइंगल्स हैं। अब कॉम्बिनेशन वाले करते हैं। अगर मैं कॉम्बिनेशन में करूं दिस 1, राइट, 1 and 2, okay, 1 and 2, then this is 3 and 4, okay. hmm uh, 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 uh. Is there anything that I'm not able to? Okay, there is one more line which is again missing, children. I'm so sorry. अब हम और देख पाएंगे। ऑल राइट, सो हमने 4 देख लिए थे। अब इसके बाद 1 2 3 4 एंड 4 तो ये हो गए। फिर वही 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो ये हो गए, प्लस 12 एंड 13 14 13 14 15 एंड 16। ये भी अब ट्राइंगल बन गए। सो +4 और हो गए। तो ये तो टोटल मेरे हिसाब से ट्राइंगल्स हो गए चिल्ड्रन। ये तो टोटल मेरे हिसाब से ट्राइंगल्स हो गए 16 और काउंट होंगे। चलो मैं नाम लिखती जाती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं नाम लिखती जाती हूँ चिल्ड्रन, तो मुझे लगता है कि हो पाएगा ये प्रॉपरली। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 से 32। 32 तो यही हो गया है ना। प्लस अब मतलब इन दोनों को अलग अलग काउंट कर लिया, और ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे भी काउंट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये तो हो गए 32। 8 4 से 32, राइट। अब बड़े बड़े ट्राइंगल्स में 1 1 2 3 एंड 4 बड़े ट्राइंगल्स भी हमने काउंट कर लिए। फिर छोटे ट्राइंगल्स भी, यानी कि 1, नहीं से तो हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस वी हैव काउंटेड 1 2,
This becomes 36 36 और कहाँ कमी हो रही है? ओके इस फॉर्म में भी ट्रायंगल्स बन रहे हैं. हमने ये वाले ट्रायंगल्स तो काउंट कर लिए. 1 इसमें भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं चिल्ड्रन. देखो एक तो ऐसे बन रहा है. यस इस पेन से करूँगी मैं ताकि दिखे. कहाँ गया? एक तो बन रहा है ऐसे, है ना, और एक बन रहा है ऐसे. तो 4 ट्रायंगल ये भी हुए, है ना, चारों साइड 4 ट्रायंगल ये भी हुए. तो +4 40 हो गए, है ना. आ, 40 हो गए. अब 40 में और कहीं दिख रहे हैं क्या मुझको जो मिस आउट हो गए होंगे हमसे? ये तो हमने काउंट कर लिया, इसको भी काउंट कर लिया. एंड anything else that is forming and we are not able to. All right, this triangle दिख गया मुझे. दिख गया. मैं बताऊंगी आप लोगों को. देखो ब्लू से बता दूं. चलो ये देखो 1 एक ये हुआ, दूसरा ट्रायंगल यहाँ हुआ, तीसरा ट्रायंगल और 4, तो यानी कि +4 और हो गए. +4 यानी कि 44 हो गए. तो चिल्ड्रन मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा ये माइंड बॉगलिंग था. मतलब माइंड बॉगलिंग क्या, थोड़ा देखना पड़ रहा था. नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हुए चिल्ड्रन? 44. ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, बट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं 44. नंबर ऑफ स्क्वायर्स, लेट्स कैलकुलेट नंबर ऑफ स्क्वायर्स नाउ. ऑल राइटी, नंबर ऑफ स्क्वायर्स किससे कैलकुलेट करें? ग्रीन से करते हैं. चलो तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे 1 2 3 4. 4 ये हो गए. 5 एक ये बड़ा खुद हो गया. 1 2 3 4 5 6 ये वाला. 7 8 9 10 टोटल 10 है चिल्ड्रन. देखो एक तो बड़ा वाला हो गया, है ना, एक तो बड़ा वाला हो गया. एक हो गया कौन सा? ये जो यहाँ पे ये ड्रॉ कर रखा है. तो 1 2 3 4 तो टोटल 5 हो गए. 5 हो गए. एक स्क्वायर ये भी है, ठीक है, और इसके 4 छोटे स्क्वायर्स, है ना. तो कितने हो गए टोटल? 4 और एक 5, और फिर ये 4 और 5, तो टोटल कितने हो गए? 10. यानी कि बच्चों नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो हुए वो कम है, दैट इज 10. नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 10. क्लियर 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 क्लियर. एक और क्वेश्चन देते हैं. छाप लो पहले तो इसको एक बार. ऐसे एक और क्वेश्चन है. काउंट नंबर ऑफ अच्छा ठीक है. Yes children, so the question is count number of triangles and squares. अब मैं डायग्राम आपको बना करके दे रही हूँ चिल्ड्रन. डायग्राम इज दिस.
इस तरह से बनाया, कैसे हो गया, लाइक दिस, ऐसे, ऐसे हो गया, एंड लाइक this and this. Right children, so अब इसके आपको number of triangles and number of squares निकालने हैं. So children, this was it for today. Thank you so much for watching. मतलब ये आपका homework है children. This is your homework. You're going to find it on your own. So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.